Today we are going to learn the experiment number 9, which is the refractive index by the prism on the virtual platform called OLabs, that is online labs. This is the website, and the link of the website is again given in the description box. You can go ahead and visit this website at least once. It is a very good website where you can practice physics experiments, chemistry experiments, as well as biology experiments. This is for practice, they have no experiments. Okay, so let's first click on to physics, and when you will click this type of page you will see. And not only this, here the class 11th, class 10th, class 9th, especially for CBSE students, her class ke liye there are separate columns and experiments. Today we are going to study this experiment, so let me click onto it, and you can see this type of simple procedure page will be there, theory page. Here our objective is the simple objective that we are supposed to find the refractive index of the material using the prism. Matlab, material of the prism we are going to find using our anything like our prism angle, deviation, IB curve, and anything. And I will show you what is the significance of this graph, how do this graph come, how this formula arrived, and what is the simplest possible way to reach it. And then we will again come to this platform and we will see how to perform the experiment. So come on, without wasting more time, let me take you to the board where I will be showing you everything in detail. So guys, come on, let's understand this theory part and let me show you how we will be reaching it. So first comes the figure. तो पहले तो मैं एक सिंपल से फिगर बता दूं, and let me tell you that you should be very much clear with the concept of refraction. Okay. वरना ये तो फिर सब कुछ बाउंसर ही जाएगा, and then don't blame me कि आपने सही से समझाया नहीं. But I know that you all are very brilliant students and you all must be knowing it. Sorry. So this is my prism. उसका एक ही लोअर ट्रायंगुलर लिया है मैंने यहाँ पे ABC. Now I'm allowing a ray to enter a prism. एक इंसिडेंट रे को मैं इंसिडेंट कर रही हूँ और नॉर्मल से नाउ इट इज डेंस. यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो N1, यहाँ का गंदा हो जाएगा. ओके, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो N2. सही है. I hope ये सब कुछ क्लियरली आपको पता है. Now N1, as I know that N2 is greater than N1, ये towards the normal bend करेगी, तो मैंने इसको bend करवा दिया. फिर से यहाँ पे क्या हुई, इसका मीडियम चेंज हुआ. अब मैं इसको जाना कैसे था, ऐसे ये गई कैसे, तो अपन को ये एंगल D निकालना है. सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि हमें ढूंढना क्या है. ओके, चलो पहले तो नाम नेमिंग कर दो. इसको P कह दो, Q कह दो, R, S, जो नाम देना है दे दो. नाम में कुछ भी नहीं रखा, क्लियरली राइट. और एंगल्स भी दे दो. यहाँ पे I है, इसको ले लो R1 और या इसको ले लो R2. एंड ये एंगल R नहीं है, ये एंगल E है, ये एंगल, ये पॉइंट R. सही है. तो चलो लेट्स डिराइव द फॉर्मूला एंड देन लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैं पहले एक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी बताना चाहूंगी. P ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या है कि सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 180 डिग्री. ये अपन को पता होना चाहिए. चारों एंगल का सम 360 है, लेकिन कोई सा भी दो एंगल ले लो उसका सम 180 बनेगा. तो मैं कौन सा क्वाड्रिलेटर ले रही हूँ, पहले तो मेरे को ये एंगल पता है, इसको मैंने दिया है A नाम. चलो ये प्रिज्म एंगल है, कोई भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का एंगल. सही है. चलो मैं यहाँ पे लिख दूं इन ट्रायंगल नहीं ना, क्वाड्रिलेटर. In quadrilater, which quadrilater? APSR.
we know that a plus s is 180. सबको पता है ये बात। a का तो एंगल मेरे पास है, एंगल s पता नहीं है, तो एंगल s में यहां से निकाल लूं 180 माइनस है। चलो मेरे को ये तो मिल गया। कम ऑन, नंबर कर दो नंबर 1। अब मैं क्या करूंगी, नाउ आई विल बी फाइंडिंग अनदर थिंग। चलो समझते हैं इस बात। अब मैं दूसरा क्वाड्रिलेटर ले रही हूँ, पी क्यू आर एस, बिकॉज ये क्वाड्रिलेटर लेना जरूरी है फॉर द सेक ऑफ दिस एंगल। यस करेक्ट। नहीं क्वाड्रिलेटर नहीं लेना तो आप ट्राइंगल भी ले सकते हो, ये पी एस आर। चलो ट्राइंगल से करते हैं, क्वाड्रिलेटर से तो हर कोई करता है। चलो, because I don't know what is the methodology followed in the textbook exactly, but मैं अपने हिसाब से आपको करवा रही हूँ in the simplest possible manner। आप ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेके भी ट्राई कर सकते हो, ओके, इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन अगर आप ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हो तो आपको पहले ये क्वाड्रिलेटर लेना होगा। मतलब ये सिंपल सी बात है, जो आप ढूंढ रहे हो, मतलब एस या क्यू, इन दोनों में से आप कोई सा भी एंगल ढूंढ सकते हो, लेकिन वो आना चाहिए। मतलब पहले आप क्वाड्रिलेटर ले रहे हो और क्यू ढूंढ रहे हो तो आपको पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटर लेना पड़ेगा, बिकॉज तभी तो अपन को क्यू मिलेगा एक ही टर्म्स में। एट द एंड अपन को यही पता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 180 आना ही आना है। एंगल एस रहने देते हैं। पी क्या होगा, ये पूरा आई है, इसमें से इतना R1 है तो ये I माइनस R1 होगा। मतलब मैं तो P एंगल को तो मैं पूरा लाइक फॉर इसके लिए लूं तो ये R1 बनेगा। सोच के बताओ एक बार। ऑफ कोर्स बनेगा, क्यों सोचना इतना। R1 ये लूं तो ये R2 बनेगा। ये सिंपल सी बात है, देखो ये Z बन रहा है, R2 बनेगा कि नहीं बनेगा वो बता दो। चलो सही, तो एंगल S क्या हुआ, ये ब्रैकेट में सही। चलो अब कंपेयर करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, क्या मिल रहा है। मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, इसका रीजन है कि अपन को कंपैरिजन के वक्त कोई दिक्कत ना हो। देखो एंगल एस फिटूस इक्वल इक्वल फिटूस 180 180 फिटूस, माइनस माइनस भी चला गया, a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 मिल गया। सही है, इससे अपन R1 और R2 निकाल सकते हैं, जो कि अपन को पता है कि सेम होंगे, अल्टरनेट एंगल्स है इस वजह से। अच्छा ये चीज तो मुझे मिल गई। यहाँ जाओ वापस क्वाड्रिलेटर वाले गेम पर। चलो क्वाड्रिलेटर आप लो पी क्यू आर एस, ये स्टेप कोई सा भी आप ले लो, ये स्टेप तो आना ही आना है फिर से। चलो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही है। यहाँ पे एंगल P क्या होगा, कोऑर्डिनेटर पूरा ले रही हूँ I, करेक्ट। एंगल Q इनको पता ही नहीं है। और एक बात, ये जो डेल है ना, ये क्या करेगा पता है आपको, ये यस वेरी गुड, ये अंदर के ऑपोजिट एंगल्स का सम भी सेम करवा दे। एनीवेज मैं उस पर भी आऊंगी, वेट अ मिनट। ओके अब आर की बारे में तुमको पता है, ई होगा, एस का तो 180 माइनस ए लिखेंगे। क्यू की बारी है, सिंपल सी चीज है, देखो आराम से सोचो, कोई लोड मत लो, एकदम सिंपल से आ जाएगा। देखो ये पूरा एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसका एक्सटीरियर एंगल है डी, एक्सटीरियर एंगल है। तो मुझे पता है कि ये जो अंदर का एंगल है, जो अपोजिट अंदर के अपोजिट एंगल है, उसका सब एक्सटीरियर एंगल होगा, मुझे पता है। अब और सुनो, इसको मैंने डी बोला है, आप थीटा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
इसके इस ट्राइंगल पे आ जाओ, इसका सम क्या होगा 180। यहाँ पे क्या होगा I माइनस R1 प्लस R2 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू, ये होने वाला है। अब यहां से Q निकाल लो, ये मुझे यहां से Q मिला बस। तो अब इसी को यहाँ पे 180 आएगा ना, मैंने थीटा क्यों लिखा, हाँ यहाँ पे 180 होगा, 180 सब्ट्रैक्शन में होगा 180 माइनस 10। ये क्लियर हुई बात, चलो लगा दे यहाँ पे 180 माइनस थीटा, और ये R1 माइनस R2 यहीं से उड़ गया, सेम है तो चलो माइनस आई इज इक्वल्स टू 360। अब 180 180 360 गए काम से, I प्लस ई इज इक्वल टू थीटा मतलब डेल प्लस ए, ये अपन की इक्वेशन आ गई। अब पहले आप लोग एक बार ये लिख लो, देन लेट मी कंटिन्यू अहेड। एक बार ये लिख दो, लेट मी इरेज दिस थिंग। आई होप नाउ ये कैसे आया ये सबको पता है। यहाँ पे 180, चलो कम ऑन लिख लो एक बारी। So this is the formula which you can see, I plus E is equals to del plus A. अच्छा, now I want to find minimum angle of deviation। मेरे को ये minimum angle चाहिए। यहाँ पे और एक मैंने फॉर्मूला डिराइव करी थी यहाँ नीचे, ये पता है सब, ओके। अब यहाँ काम आएगा वो हमारा R1 इक्वल टू R2 वाला फंडा लगाओ। यहाँ पे क्या होगा, A इज इक्वल टू 2 और R इज इक्वल टू A बाय 2। इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, ओके। अब डेल डीएम कब बनेगा, डीएम क्या है हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। जब आई विल बी इक्वल टू ई, मतलब जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई रे उतने ही एंगल पर बाहर निकली। डायरेक्शन नहीं पूछी बच्चों, एंगल पूछा है विद नॉर्मल। सपोज ये रे नॉर्मल के साथ यहाँ 60 डिग्री बना रही है और बाहर निकलने के बाद ऐसा जरूरी उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ भी 60 होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा 60 तो चाहिए लेकिन कहीं पर भी चल सकते हैं, मतलब अगर वो ऐसे भी चली गई तो ये एंगल भी 60 ही बनेगा। ये होगा क्यों, ये ही कंडीशन क्यों होगी, क्योंकि अगर मैं इंसिडेंट एंगल को इस इमर्जेंट एंगल से बड़ा कर, देखो मेरे पास तीन ऑप्शन है, आई ग्रेटर देन ई, आई लेस देन ई, आई इक्वल टू ई। ठीक, मैंने पांच रीडिंग ली है आई ग्रेटर देन ई के, मतलब मुझे ई भी मैंने मेजर किया। सपोज मेरा ई आ रहा है 35 और मैं आई ले रही हूँ 40, फिर मेरे को ई मिला कुछ और, मतलब हमेशा मैं आई से ई को बड़ा रख रही हूँ, सॉरी छोटा रख रही हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं आई से ई को बड़ा करी, तो क्या हो रहा है यहाँ सारे रीडिंग घट ही रहे हैं। मुझे चाहिए क्या मिनिमम है, मतलब दिस नेवर स्टॉप, मैं जैसे जैसे आई बढ़ाती जाऊंगी ई घटता जाएगा एंड इट विल रीच टू इनफाइनाइट। ये निगेटिव इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, वो वाला पॉजिटिव इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, खत्म। यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सब कुछ उल्टा। लेकिन मुझे बीच का पॉइंट चाहिए जहां पे मैं मिनिमम एंगल दे पाऊं, मिनिमम निकालना। तो ये पार्ट बचा, ये किया तो हमें मिला, तो बस अब इसी चीज को इसमें डाल दो। आई प्लस ई मतलब 2, क्या लिखूं, आई ले लू, ई अभी रहने दो बिकॉज इमर्जेंट के साथ अपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, इज इक्वल टू डेल क्या बन गया अब यहाँ पे डीएल प्लस एक आई। अब आई की वैल्यू निकालो यहाँ से, क्यों निकालनी है, क्या काम है, सब कुछ समझा रही। आई डी एम प्लस ए बाई 2। स्नेल्स लॉ किसको याद है, ऑफ कोर्स सबको याद है, राइट। स्नेल्स लॉ में क्या है, n21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसी वजह से मैंने आई और आर को सब्जेक्ट बनवाया।
n2/n1 इज इक्वल टू, क्या हुआ, साइन आई क्या है मेरे पास, dm, ये m छोटा सबस्क्रिप्ट में जाएगा, प्लस a/2 अपॉन साइन ऑफ r, क्या है यहाँ पे मेरे पास, a/2। अब n1 तो बॉस 1 है बिकॉज सराउंडिंग में मोस्टली, लेकिन अगर नहीं रख रहे तो बेसिक सा फॉर्मूला यही आएगा, dm, अच्छा सॉरी आई डोंट नो कि आपको फिजिक्स में आया है या नहीं, लेकिन इफ मैं साइन को मिनिमम कर दूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा। अब तक तो आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आया, तो अगर मैं साइन की थीटा की वैल्यू को मिनिमम कर दूं तो उसका आंसर, उसकी जो वैल्यू आएगी वो थीटा के जितनी ही होगी। मतलब मैं अगर इसको 10 to 0 कर दूं, इफ sin theta tends to 0 then theta will be equals to, theta will also be tending to 0। मतलब जो वैल्यू, जैसे आप साइन को छोटा करोगे ये काम होगा, अरे सॉरी, थीटा विल नॉट टेंड टू 0, साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, सही। तो इसको भी मैं छोटा कर दूं, इसकी तो अब जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। चलो अगर जरूरत है भी तो बता देना, मैं फिर ऐड करवा दूंगी। ओके ओके, यहाँ पर देख लो, थीटा को छोटा करो क्या मिलेगा, हमेशा भूल जाते सब्सक्रिप्ट में लिखना, 2 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या होगा, n21 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल, मुझे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक, तो बस मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, n21 into a माइनस a इज इक्वल्स टू मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन ये बहुत घटिया सा फॉर्म है तो मैंने इसको कॉमन निकाल के बढ़िया कर दिया। मेरे पास प्रिज्म एंगल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और मैं डेविएशन निकाल पाऊँ, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल पाऊँ। सिंपलेस्ट मेथड, इससे सिंपल कोई बता ही नहीं सकता, राइट। अब देखो यहाँ पे ग्राफ की बात, ग्राफ तो आपकी बुक में बहुत सिंपली बता दिया है कि I वर्सेस ये कैपिटल DM का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, और सॉरी उल्टा किया क्या, या नहीं सही है, और एक लेवल पर जब दोनों सेम होंगे, मतलब जो ये पॉइंट हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा एंड एवरीथिंग, तो मैं ये सब राम कहानी में नहीं पढ़ूंगी। सीधे मेरे को आप लोग ये बताओ, I और DM के बीच का रिश्ता क्या है। यहाँ पे I ले लो, यहाँ पे DM ले लो। मैं अगर I को बढ़ाऊं तो DM पे कोई असर होगा क्या, ऑफ कोर्स होगा गाइस। यहाँ से देखो I इज डायरेक्टली अगर ये चीज तो कांस्टेंट है तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DM, सही, DM/2। ओके चलो, DM/2 या 2DM होगा, सोच के बताना, करेक्ट DM/2। अच्छा, तो मुझे ये एक रिलेशन मिल गया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DM/2, सही। ये कहीं पर लिखना नहीं है, आपके रेफरेंस के लिए बता, मतलब मैं I को बढ़ाऊंगी तो DM हाफ जितना बढ़ेगा, मतलब I को 1 किया DM हाफ, 2 किया DM 1, मतलब आधा आधा करेगा। तो अब आप लोग खुद सोचो कि किस एक पॉइंट पर ये दोनों मिल सकते हैं, कम ऑन थिंक आउट, कौन सा वो पॉइंट होगा जब I और DM इक्वल बनेंगे, हो सकता है क्या कोई पॉइंट, जीरो के अलावा, जीरो नहीं सोचना, कुछ और। तो वो जो कुछ और पॉइंट है पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए, वहां पे I और DM की वैल्यू सेम हो रही है और फिर आगे जाकर कांस्टेंट हो जाएगा। This is the theory part. So I am sorted. Let me take you to my laptop screen and let me continue with the stuff which I was continuing ahead. Next comes procedure. प्रोसीजर में उन्होंने रियल लैब प्रोसीजर भी दिया और सिमुलेटर भी दिए।
रियल लैब प्रोसीजर में जाने से पहले मैं आपको उसके मटेरियल्स बता दूं। द वेरी फर्स्ट इज प्रिज्म, नेक्स्ट इज ड्राइंग बोर्ड, देन पेपर, पेन्स, स्केल, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर, ये इन सब चीजों की बेसिक जरूरतें पड़ेगी हमें। अब रियल लैब में आपको क्या करना है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता देती हूँ। लेट मी जस्ट स्टार्ट राइटिंग। ओके, सो इन द रियल लैब यू विल बी गिवन अ पेपर, आपको एक बोर्ड दे देंगे और एक पेपर दे देंगे, उसमें पिन्स, वो स्नूचिंग स्टैपिंग पिन्स आती है वो भी आपको दे देंगे। बस आपको इस पेपर पे उस प्रिज्म का लोअर ट्रायंगल, मतलब प्रिज्म तो इसी तरह से होगा कुछ, ये अपर ट्रायंगुलर हुआ, राइट, और ये पीछे का ट्रायंगल बनेगा हमारा, सॉरी, ओके, ये पीछे का ट्रायंगल कुछ इस तरह से होगा। तो हमें ये जो लोअर ट्रायंगुलर है इसका इम्प्रिंट हमें पेपर पर लेना है। बस फिर प्रिज्म हटा देना है और पेपर पर अलग अलग एंगल पर इंसिडेंट रे को इंसिडेंट करना है, और यहाँ बाहर निकलने के बाद डी हमें मेजर करना है। वी हैव टू मेजर डी, और उस पर से तो अपन को पता ही है कैसे कैपिटल डी निकालना है, बाय द फॉर्मूला, करेक्ट। तो हमें यही काम करना है एट द रियल लैब, पर हमें यहाँ क्या करना है दैट लेट मी शो यू फर्स्ट। यहाँ हमारे पास सिम्युलेटर प्रोसीजर है, वो मैं आपको बता दूं, या सिम्युलेटर है मतलब जहाँ पे आप एक्चुअल में परफॉर्मेंस करने वाले हो अपनी। तो आपको यहाँ नीचे का ट्रायंगुलर दिख रहा होगा, वो कर रहा है। स्टार्ट एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट यू हैव टू क्लिक। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रिज्म्स गिवन है, यू कैन सिलेक्ट एनी वन, मैं कोई भी ले रही हूँ, प्रिज्म 4, प्रिज्म 3, अप टू यू। ओके, चलो मैंने प्रिज्म 4 ले लिया है। अब यहाँ पे तो सब कुछ गिवन है, R1 क्या है, R2 क्या है, बट एट द एंड आपको नहीं गिवन होगा, तो सब कुछ खुद से करना होगा, राइट। तो वी डोंट वांट एनी कंफ्यूजन, इसलिए मैं आपको इन सब से दूर रख रही हूँ। अब आपको यहाँ पर इन द प्रोसीजर पार्ट, लेट मी शो यू दैट फर्स्ट। ओके, इन द प्रोसीजर पार्ट आपको यहाँ एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिख रहा होगा 30 से 60 तक का, आपको एंगल ऑफ डेविएशन नोट करके लिखने हैं, एंड एट द एंड आपको यहाँ पे एन निकालना है, सही है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि सीरियल कितने हमें लेने हैं, 7 एक्सपेरिमेंट्स लेने हैं। तो ये हमारा टेबल होगा जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन टेबल कहते हैं जिसको इन द लेमैन्स लैंग्वेज। तो मैं 7 तक फिलअप कर देती हूँ, फिर हम एंगल ऑफ डेविएशन लिखते जाएंगे। अब इफ आई वांट मोर कॉलम्स तो प्लस ऐड करो, उतने कॉलम्स आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर ज्यादा है तो माइनस करके डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ 30, 35, 40, सॉरी 45, 50, 55 एंड हियर कम्स द 60, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है ना रेंज की। तो ओके फाइन, सो 30 पर आई वांट टू मेजर दिस डी, तो हम प्रोट्रैक्टर दिख लेंगे। अब प्रोट्रैक्टर में ये क्रॉस है जिससे प्रोट्रैक्टर गायब हो सकता है, और ये जो आपको दिख रहा है बीच में, उससे आप उसको हिला डुला सकते हो, और ये ऊपर मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ये उल्ट नीचे वाला है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। हमें इसे ग्रीन लाइन पर सेट करना है एज इफ कि ये हमें करेक्ट रिजल्ट दे, राइट। ओके चलो, तो मैंने इसको कर लिया है सेट। अच्छा, तो नाउ आई कैन सी द रिजल्ट इज लाइक 130, सबको दिख रहा है ये चीज। चलो तो लिख लेते हैं 130 इज माय आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो, हाइड प्रोट्रैक्टर, और फिर यहाँ से हमें करना है 35, तो मैं ले आई 35। चलो फिर से शो करते हैं प्रोटेक्टर को, फिर ले आओ इसको यहाँ पे। अप टू आस है कि हमें किस डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाना है, ठीक है। फिर ऐसा नहीं है कि हर बार मैम ने बोला है तो यही करना है, नो इट इज नॉट सो। अब यहाँ पे कितना आया, इट इज लाइक 136, आपको बहुत ध्यान से करना है। ओके चलो 136 आया, 40 पर करो। चलो ऐसे करते करते आपको 6-7 ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें। इट इज वेरी सिंपल, राइट, इट इज सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट, और आपको
रियल लैब में भी ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट लगेगा कंपेयर टू अदर्स, मतलब अदर्स हार्ड नहीं है बट दिस इज सिंपलेस्ट। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो 130 से 136 देन 140, और यहाँ से आप चार्ट भी देख सकते हो। देखो ये इंक्रीज हो रहा है जैसे मैंने आई हैव शोन यू ऑन द प्रीवियस टाइम। बस तो आप आगे मैं सारे ऑब्जर्वेशंस नहीं लूंगी, आप अपने आप से सारे ऑब्जर्वेशंस ले लेना, ठीक है। नाउ कम्स द वाइवा, जो आपको वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। The first question comes is, on what factor does the angle of deviation depend? तो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्या लगता है? यहाँ पे देखो उन्होंने हिंट दी होगी, तो यहाँ पे ट्यूबलाइट जैसे चमकेगा, और आपको चाहिए तो दबा देना, नहीं तो आप रख सकते हो, सही है। मैंने आपको डेमो के लिए दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी रिफ्रैक्शन occur when a ray passes through a triangular prism? ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है। इफ यू अंडरस्टैंड द फील, अगर आपने कॉन्सेप्ट की फील को समझा है कि मेरे पास ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो इसमें से कितने रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो लेट मी यूज अनदर वन। तो यहाँ पर तो भाई एक इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्रैक्ट हुई और ये नीचे गई, तो कहाँ पूछा है अक्कर कितने रिफ्रैक्शन हो सकते हैं, तो कितने हुए? कहो 2 या 3? कोर्स बोलो बोलो जल्दी से। करेक्ट, या 2, क्योंकि बेसिकली वो तो हम एंगल को नाम दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपको दिखेगा भी, हिंट है हमारे पास। 2 refractions when a ray of light. Okay. Which one is true at the minimum deviation? Minimum deviation पे क्या true होगा? मतलब I is equal to E है, तो फिर प्रिज्म के बेस से पैरेलल होगी। अभी मैंने वो फिगर ड्रॉ करी थी, सिंपल है। ओके, देखो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया है। मैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट टूल यूज करूंगी। A is equal to 60 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे आपको मिनिमम एंगल D इज इक्वल टू 37.2 भी दे रखा है। यू नीड टू फाइंड N। तो N तो हमें पता है कि साइन ऑफ A प्लस डी, सॉरी यहाँ पे कैपिटल D आएगा, गिव मी अ टाइम टू राइट, बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए। यही है, बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, सिंपल सी चीज है। करेक्ट, तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ रही हूँ अभी, ये मैं नहीं कराऊंगी। ओके, चलो ये तो सिंपल है, अपन सबको पता है, यूनिवर्स को पता है दैट इज दिस। ओके, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म? कितने लोगों को पता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है? वेरी गुड। किसी भी रिफ्रैक्टिव कॉन्जिक्यूटिव टच्ड रिफ्रैक्ट वो सरफेसेस होनी चाहिए। मतलब अगर एक सरफेस ऐसी है और एक सरफेस लाइक कुछ ऐसी है, तो ये एंगल कभी एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये एच टू एच टच्ड नहीं है। एच टू एच टच्ड होकर क्लोज्ड फिगर बनानी चाहिए, तभी आप किसी दो सरफेसेस को एंगल ऑफ प्रिज्म बता सकते हो। राइट गाइस, डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके, which one of the following is correctly represented Snell's law? यहाँ पे उन्होंने सेकेंड मीडियम को एयर लिया है, ठीक है, तो बताओ फर्स्ट मीडियम को एयर लिया है, तो यही होगा, सिंपल सी बात है। इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 और ये है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ दे हैव चेंज्ड द नंबर, तो यहाँ पे कर दो सबमिट। अपन के सारे है, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया बिकॉज इट इज फॉर यू, ये भी अटेम्प्ट नहीं किया बिकॉज इट इज फॉर यू। अच्छा, अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत। तो आप यहां से कोई भी प्रिज्म के सारे एक्सपेरिमेंट्स भर लो, उसके बाद आप शो रिजल्ट कर। ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू मैनिपुलेट द आंसर, नो, यू हैव टू ऑब्टेन दिस थिंग। Yes, you have to take the average of incident ray also, deviation also, and then you have to find A and everything. Did you get that? Right? So chalo, this experiment is concluded over here, but before I go, I take a leave. You can see यहाँ पे आपको e पाठशाला
पूरा रे ऑप्टिक्स का चैप्टर फ्लिप बुक के हिसाब से दे रखा है। आप इसके पेजेस को फ्लिप करके आगे पढ़ सकते हो क्या है इस पाठशाला में, क्या मतलब हमारा टॉपिक कहाँ है। लेट मी शो यू दैट। ये रिफ्रैक्शन का है। इट विल बी नाउ, अब आ जाना चाहिए इसको, नहीं दिस इज रिफ्रैक्शन बाय लेंस, दिस इज यस। ये पूरा चैप्टर आपको एनसीईआरटी का ये रहा बाय प्रिज्म, और ये सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है, तो आपको ये पूरा पढ़ भी सकते हो आप यहाँ से। So that's all for today. See you in the next experiment. Till then, thank you for watching.